السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برائے کرم آپ لوگ اپنے اپنے آڈیوز بند کر لیں، بلکہ ویڈیو سارے لوگ کھول لیں، اچھا لگے گا دیکھنے میں۔ آپ سب کے سب جو ہے اپنا اپنا ویڈیو کھول لیں اور آڈیو جو ہے بند کر لیں۔ چلیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اور ہمارے جو خطیب ہیں عبد الواحد اثر انصاری صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سامنے ضرور آئیں گے۔ آگے کیونکہ آج جو ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے وہ تھے بابو نجم الدین صاحب اثر انصاری صاحب کے صاحبزادے، لیکن لگتا ہے وہ تاخیر ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک آ نہیں پائے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آج تلاوت قرآن میں ہی کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہمارے شکیل صاحب موجود ہیں، جو ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے لہجے میں اور بہت ہی اچھے ترنم میں وہ نعت نبی گنگنایا کرتے ہیں۔ چلیے میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور تلاوت قرآن سے میں ہی ابتدا کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں شکیل احمد صاحب کو، اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عالم اوپر سے کوئی بات نہیں ہے، اگر گاڑی میں تو چلے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ جی یہاں پر الفاظہ معذرت سے ہوں، اچھا اچھا، اس لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ طاعت مصطفیٰ ہی میں بس کاش گزرے میری زندگی، طاعت مصطفیٰ ہی میں بس کاش گزرے میری زندگی، طاعت مصطفیٰ ہی میں بس
کاش گزرے میری زندگی طاعت مصطفیٰ ہی میں بس، کاش گزرے میری زندگی، کر دے بیزار سنت سے جو، کر دے بیزار سنت سے جو، ہو میسر نہیں جی خوشی، کر دے بیزار سنت سے جو، ہو میسر نہیں جی خوشی، حجر اسود کو بوسا دیا، ہو گئے معاف سارے گناہ، حجر اسود کو بوسا دیا، ہو گئے معاف سارے گناہ، حجر اسود کو بوسا دیا، ہو گئے معاف سارے گناہ، جب سے دیدار طیبہ ہوا، جب سے دیدار طیبہ ہوا، بر گئی خواہش دیدری، جب سے دیدار طیبہ ہوا، بر گئی خواہش دیدری، جب گئے آپ معراج میں، خیر مقدم ہوا اس طرح، جب گئے آپ معراج میں، خیر مقدم ہوا اس طرح، الفتن ہر نبی نے کہا، الفتن ہر نبی نے کہا، مرحبا مرحبا یا نبی، الفتن ہر نبی نے کہا، مرحبا مرحبا یا نبی، طاعت مصطفیٰ ہی میں بس، کاش گزرے میری زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے کی طرح آج تھوڑا سا ساؤنڈ آپ کا کم لگا، اور چونکہ منہ پہ آپ جابی لگائے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آواز بھی تو اپنے اندر ہی رہ گئی ہے، باہر آ نہیں جی سکی۔ شیخ میں معذرت چاہوں اس لیے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈھک لیجیے، اب لوگ دیکھ لیں گے آپ کو۔ جی ابھی تو پارکنگ میں آ گیا اس لیے، اور معذرت چاہوں کیونکہ پارکنگ اسی ٹائم کر لینا تھا۔ بہرحال تھوڑا کوئی بات لمبا، نہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ تھے آمین۔ ہمارے شکیل احمد صاحب جو بڑے ترنم خیزہ انداز میں یہ اپنے نعت نبی ہمیشہ پیش فرماتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد خطابت کی باری ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ ہے ہمارے ایک بہت ہی ہم دوست جناب عبد الواحد اثر انصاری صاحب، جو ماشاءاللہ اس ابھی اسکول چلا رہے ہیں مدرسہ الاصلاح کر کے گاؤں کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے لیے ہی ہے، یہ ہم نے جو کیا کہتے ہیں مقصد حیات جو کھولا اصلاح معاشرہ کے لیے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے اندر جو برائیاں اس سے دور کیا جائے، جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کی جائے۔ کمی کوتاہی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن لیول جو ہے بہت ہی نیچے ہے، بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ 0% کہہ لیں آپ۔ ہمارے علماء کرام جتنے فارغ تو ہو جاتے ہیں، نیپال میں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے نا۔ تو یہ سب ایک بہت ہی کمی محسوس ہوتی ہے ان سب چیزوں کے متعلق۔ کیسے ہو بھائی؟ کیونکہ ہمیں راہ دکھانے والے کچھ لوگ نہیں ہوتے، یا ہمارے دور میں ایسے لوگ نہیں ملے۔ آج الحمدللہ یہ ساری چیزوں کے اوپر دھیان دیا جا رہا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے احباب اس کے اوپر جٹے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں سب کچھ کریں، اسلامی تعلیم حاصل بھی کریں، لیکن ہم انشاءاللہ ایسے بندوں کو یا بندیوں کو جو اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں ان سارے مدارس والوں سے یہ کہتا ہوں اور ان سب پہ زور دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مدرسے کے اندر اسکول کا جو نصاب ہے سرکاری اسکول کا، اس نصاب کو بھی آپ لوگ ڈالیں، قائم کریں اس کو، اور آپ لوگ جو بھی بچے دوسری جماعت میں آتے ہیں 8 کلاس کا امتحان انہیں دلوائیں،
اور جو بچے تیسری میں جائیں 9 کا اور چوتھی جماعت میں جب جائیں تو میٹرک کا وہ امتحان دے لیں. تو اس سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے آلریڈی. الحمدللہ کئی مدرسے والے جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ میں سے جن بھائیوں تک یہ باتیں پہنچے آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, یا آپ نے یہاں جو بھی آپ کے یہاں ادارے ہوں مدارس ہوں ان کو آپ لوگ بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں. اگر کسی کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو یا معلومات کی کمی ہو یا کسی اور بھی چیز کی تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار ہیں. تو میں ان ساری باتوں کے بعد میں اب دعوت سخن دیتا ہوں اپنے شیخ جناب عبدالواحد اظہر انصاری صاحب کو, وہ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ یہ ان کا 10 سے 15 منٹ کا ٹائم رہے گا. اس کے بعد ہم لوگ مل جل کر کے ہم سب بات کریں گے کہ ہمارے سماج میں کیا چیز کی کمی ہے, کیا کوتاہی ہے, کیا کیا چیز آپ کے یہاں ضروری ہے, کیا ہمارے گاؤں میں ہے, کیا ہمارے ضلع میں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ ایک چیز اور میں بتا دوں, ہمارے یہاں محرم کے مہینے میں 1 تاریخ سے ہی ہمارے گاؤں میں خاص طور سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو دہا یا تازیہ بناتے ہیں اور خوب دھوم دھڑکا کرتے ہیں. ہمارے یہاں 1 تاریخ سے ہی شروع ہے, یعنی 2-3 دن پہلے سے ہی یہ دھوم دھڑکا, ڈھول باجے, تازے گاجے سب شروع ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری برائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں, کون لوگ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ساری باتیں ہم لوگ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے شیخ محترم اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. محترم ناظرین کرام, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات نے مجھ ناچیز کو یہ شرف بخشا کہ آج میں ماہ محرم, اسی طریقے سے صوم عاشوراء کے موضوع کے تحت چند منٹ تک آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین کے یہاں, اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے, اور یہ اللہ کی کتاب میں اس وقت سے موجود ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور ان مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مخصوص کر دیا, اور ان کی گنتی بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ منہا 4 حرم. ان مہینوں میں سے جو اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم, یہی سیدھا اور سچا دین ہے. وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اور اس میں تم اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے بندے کو مہینوں کی گنتی بتاتے ہوئے اس بات کی طرف بھی نصیحت کر رہا ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہ ہے کہ جن مہینوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصاً بندے کو قتل و غارت گری, اسی طرح سے جنگ اور دیگر تمام فتنے اور فساد سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے کہا ہے, تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اور اگر انسان نہیں بچتا ہے تو یہی گویا اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا.
ہم سب سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام جس طریقے سے عربی انگلش یا انگریزی مہینوں سالوں میں جن مہینوں کا شمار ہوتا ہے ان میں بھی 12 مہینوں کا شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی سال کے اندر بھی 12 مہینوں کی گنتی آتی ہے، جو جہاں سے محرم الحرام جو یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کی جو فضیلت یعنی ماہ محرم الحرام اور اس کے اندر کیے گئے اعمال کی جو فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ہم تمام لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سی چیز ہمارے لیے مباح ہے، کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے، اور کون سی چیز اس کے اندر بدعات اور خرافات کے نام سے جانے جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے تعلق سے جہاں پہ بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان یعنی رائج ہے کہ رمضان کیا ماہ محرم الحرام میں جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے جو 12 مہینہ اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں اور 3 پیدر پہ ہیں، یہ اور ایک اس سے الگ اللہ رب العالمین نے جو ہے بنایا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 جو پیدر پہ مہینے ہیں اور چوتھا مہینہ یعنی جو رجب ہے وہ اکیلا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اسے ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی قدر کی جاتی تھی، اور ذی الحجہ کے مہینے میں وہ حج کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ امن اور امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے حرمت والا مہینہ بتایا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت احادیث سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ ان مہینوں کون کون سے وہ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر ہمیں جو ہے قتال اور اسی طریقے سے فتنہ و فساد جیسی چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہر منها 4 حرم، جو ہے سال میں 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، اور ان میں سے 3 جو ہے وہ پیدر پہ آ رہی ہیں۔ وہ کون 3 ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اسی طریقے سے والمحرم ورجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب بات آگے یہ آتی ہے کہ اس ماہ محرم میں جو یوم عاشورہ کا دن ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہم ماہ محرم میں عاشورہ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے تعلق سے عوام اور پبلک کے اندر، عوام الناس کے اندر بہت ساری باتیں جہاں پہ رائج ہے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے توبہ قبول کی، کسی نے کہا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف جو ہے نگاہ اٹھائی اور ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن سب سے صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ یہودی بھی جو ہے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم پر جو ہے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے بچایا، اور اسی دن فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے غرقاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو سب سے زیادہ ہم حقدار اس بات کے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم صحابہ کرام کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام لوگوں کے پاس خبر بھیجے اور تمام لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد جب ہمیں اس میں جو ہے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی جو ہے خبر دی تو ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جب ہمارے بچے کبھی بھوک سے کبھی پیاس سے نڈھال ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے، تو ہم بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے کھیلیں اور ہمارے ساتھ پھر افطار کریں۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو وہاں کے لوگ بھی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو قریش کے لوگ بھی اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب خصوصاً آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے استفسار طلب کی تو ان لوگوں نے جو بات بتائی کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اسی طریقے سے فرعون اور اس کی لشکر کو اللہ رب العالمین نے غرقاب کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو اس کے اور زیادہ حقدار ہیں، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ آج کے ہمارے موجودہ معاشرے میں اس یوم عاشورہ کے دن مختلف قسم کے بدعات و خرافات ہمارے معاشرے کے اندر موجود پائے جاتے ہیں، اور تقریباً یہی دیکھا جا رہا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر کے لوگ جو ہے یوم عاشورہ کے دن تک تیس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے خرافات و لوازمات اکٹھا کرتے ہیں، اور اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بتلاتے ہوئے اپنے آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ غمخوار ہیں اور ان کی یاد میں ہم یہ سب ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے جس قدر محبت کرتے تھے، یقیناً ہم تمام مسلمانوں کو اسی طریقے سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ایک آپ کے ایک کندھے پہ بیٹھے تھے اور دوسرے یعنی حسن ایک کندھے پہ تھے اور حسین دوسرے کندھے پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، اور کبھی حسن سے پیار کرتے اور کبھی حسین سے پیار کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے بھی محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی عناد یا بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ بقدر الہی یہ چیز ہونی تھی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک سے آپ رونے لگے، اس کے بعد میں نے آپ کو چھوڑا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی امت جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھلا سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو وہ مٹی بھی دکھلائی گئی جسے آج کے لوگ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام خرافات جو یوم عاشورہ کے دن اور ماہ محرم کے اندر جو بھی خرافات و بدعات قسم کی چیزیں جو رائج ہیں، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، مثلا جیسے کہ سینہ پیٹنا، اور اسی طریقے سے دامن چاک کرنا، بال نوچنا، تعزیہ داری کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر 5 چیزیں ایسی ہوں گی جسے ہماری امت کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسب یعنی قومیت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور اسی طریقے سے دوسرے کے نسب پر طعنہ زنی کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے نوحہ کرنا۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت کی ہیں، آج اگر ہم اور آپ بنظر غیر معاشرے کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ضرور نظر آتی ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، اس لیے کہ ایسی چیزیں اسلام کے اندر بدعات اور خرافات کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ جو ہے انسان کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہیں جو ہے اس سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس جو ہے اس کام پر عمل کریں، اور جہاں جس وقت جس طریقے سے ہمیں نیکی حاصل کرنے کا موقع میسر ہو اسے ضرور حاصل کریں۔ محترم ناظرین کرام، یوم عاشورہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اندر بہت ساری خرافات جہاں پہ رائج ہیں، وہاں پہ آج ہی سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً شہروں کے اندر جب اگر آپ جائیں تو وہاں پہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ آج ہی سے لوگ اپنے سروں کے اوپر سیاہ قسم کے کپڑے باندھ کر کے شہر کی گلیوں، کوچوں، بازاروں، سڑکوں، چوراہوں پہ مختلف قسم کی آوازیں لگاتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور تعزیہ داری کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ان کا کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث کے اندر کہ جو ان تمام چیزوں سے باز نہیں آتا، لیس منا من لطم الحدود وشق الحبوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخسار پر جو ہے تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، اور جاہلیت کے دعوے کے پکار کے ساتھ یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جاہلیت کے رسم و رواج سے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یوم عاشورہ کے دن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف بلا رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مختلف فرق کے لوگ یوم عاشورہ کے دن مختلف کھانے کے لوازمات اور مختلف پہننے کے کپڑے اور اسی طریقے سے مختلف پروگرامیں بھی لوگ رچاتے ہیں، اور اس ماحول میں معاشرے کو لا کر کے بالکل یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو
गुमराही का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे खुराफात से बचें। माशरे के अंदर हमारे जो भाई इन खुराफात के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें। उलमा की भी जिम्मेदारी है और हमारे उन अहबाब की जिम्मेदारी है जो कुरान और हदीस की थोड़ी बहुत इल्म रखते हैं और जिन्हें इस बात का इल्म है कि ऐसी चीजें इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, इस्लाम के अंदर तमाम की तमाम चीजें मना है। इन तमाम चीजों से खुद भी रुके और दूसरे लोगों को भी मना करें। अल्लाह आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को हुस्न अमल करने की तौफीक अता फरमा और माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमा, यौम आशूरा का रोजा रखने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह आलमीन यौम आशूरा के रोजा के बदला में हमारी जो एक साल की छोटी छोटी गुनाहें हैं तो उन्हें माफ कर दे। अल्लाह आलमीन हमें सीधे और सही रास्ते की तरफ चला। अल्लाह आलमीन हमें दीन का सच्चा पक्का शहदाई बना। अल्लाह आलमीन हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पे हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल हमारे एक बहुत ही अजीज खास मेहमान आ गए थे, तो उन्हीं से थोड़ी सी बात करने लगा। असल में कुछ वही बिजनेस के ताल्लुक से लोग आए हुए हैं। कतर के अंदर भी लोग सोच रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है स्कूल खोला जाए, है नहीं, नेपालियों का स्कूल नहीं है यहाँ पे। लेकिन इंसान जब फिक्र करता है, जब सोचता है, गौर करता है, तो उन्हें समझ आती है कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है। हम अपने लिए, हम अपने बाल बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो अभी भाई आए हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारा नेपाली स्कूल नहीं है, तो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसी ताल्लुक से हम थोड़ा सा बात चले गए थे करने के लिए बाहर में 10 मिनट के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो माशाल्लाह से का बयान भी ज़बरदस्त रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे शेख यहीं कतर ही में पहले रहते थे और इंशाल्लाह दोबारा आने वाले हैं बहुत जल्द। फिर हम लोग साथ ही में करेंगे मिल बैठ करके ये सब सारे काम जो है। तो अगर आप में से कोई आदमी ये जैसे अपने माहौल और माशरे के अंदर देखते हैं कि ताजिया बनाया जाता है, दाहा बनाते हैं, है ना, ढोल ताजा बाजा क्या क्या सब होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है क्या हम लोग मेहनत करेंगे तो क्या ये ख़त्म हो सकती है क्या? तो हमें से कोई भाई अगर हो बता सकते हो तो आप लोग बताएं। आप लोग अपना अपना ये खोल लें, म्यूट कर लें, ये अनम्यूट कर लें, है ना, अपना अपना वीडियो ऑडियो सब खोल लें सारे के सारे लोग, क्योंकि अब तकरीर जो है ना खिताब वो ख़त्म हो गया है। तो हम लोग बातचीत करेंगे आपस में थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग जो है हाल चाल एक दूसरे का समझ बूझ करके और इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जी शकील साहब आप कहाँ हैं? शकील साहब, वसीम साहब दोनों गांव वाले कहाँ हैं? और मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब आप भी अपना एक खोल लें और अमीरुल भाई साहब आप भी खोल लें। जी अमीरुल साहब आप कहाँ के हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुरीबा आप ही का बगल का। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पड़ोसी निकले आप। जी जी, कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं कतर दोहा मुगलिना में हूँ अभी फिलहाल। मुगलिना में है? जी। काम कहाँ पे है? वहीं पे? काम इधर है। हाँ यही है मुगलिने में। अच्छा चलिए अच्छी बात है। अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए, आपके जिस्म जान में बरकत अता फरमाए। तो आपके यहाँ तो ये ताजा वगैरह नहीं बनता है ना? इससे 5-6 साल पहले खुद का मेरा अब्बा था वो वही बनाता था, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत फजलो करम है। हम लोग थोड़ा इल्म से दूर था, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ जानकारी हुई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बंद है, अभी नहीं हो रहा है, नहीं चलता है। माशाल्लाह। अच्छी बात है, इसलिए कि मैं आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है, 20 साल से जरूर भी ज्यादा हो गया होगा। बहुत बड़ा वो आपके जो स्कूल वाला है नहीं, वो
स्कूल है या क्या है, मंदिर वाला जो फील्ड है उसी के ऊपर बना था वो एक मरतबा। तो मेरा अब्बा ही बनाता था पहले, अच्छा अच्छा, सुलेमान। हाँ हाँ तो हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से बंद है, सबको समझा दिया ये सब हराम है, ये सब नहीं करना चाहिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह को जज़ा खैर दे और आपकी कोशिश को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ अजीम साहब, जी साहब। अपना वीडियो भी खोल लीजिए अगर आप खोल सकते हैं तो। जी जी। अच्छी बात है माशाल्लाह, हम्म। बड़ी खुशी हुई कि आपकी शादी मेरे गांव में है ना। इतने दिनों से आते थे, मुझे मालूम है, आज पता आपको चला मालूम नहीं कि था पहले? आपकी शादी खाना आबादी हमारे ही गांव में है। तो जो जबरदस्त रिलेशन हुआ हमारे गांव से आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपका जो गांव है मझौरा, जी तो जी मझौरा गांव तो बहरहाल मुकम्मल पूरी बस्ती अहले हदीस की है। जी। और ये पूरा बड़ी ले खुशी की बात है कि पूरे जिले के अंदर यही एक बस्ती ऐसी थी जो मुकम्मल तरीके से अहले हदीस की थी। और उसके अलावा एक और है, क्या नाम है उस गांव का, आपके पड़ोसी जो गांव है? गम्हरिया है, गम्हरिया गम्हरिया। एक परसा, 3 गांव मोहतर हैं। गम्हरिया जो है, आप लोगों को बताऊं, गम्हरिया जो है ये भी अहले हदीस की गांव है। और इन दोनों गांव में मुझे खिताब करने का मौका मिला है। जब भी लोग यहाँ प्रोग्राम करते थे रात में, है ना, जैसे हमारे यहाँ मिलाद बोलते हैं, तो मिलाद तो नहीं होता था शादी के में या अकीके के मौके से, ये लोग कोई भी मजलिस रचाते थे या प्रोग्राम करते थे तो हमें जरूर बुला देते वो लोग। और शेख अब्दुल अजीज साहब जो सल्फी साहब, वो हमें जरूर याद करते थे, तो हम जाते थे वहाँ पे। कई मतलब हमारी तकरीर वहाँ पे हुई है। अभी एक और गांव का इजाफा हुआ है, अहले हदीस का जो गांव है उसमें एक और गांव का इजाफा हुआ है, और वो है परसा। पूरी की पूरी बस्ती थी, है ना, सुन्नियों की, जो हमारे यहाँ के हैं। बहरहाल अभी वहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तकरीबन तकरीबन जो है अहले हदीस हैं, जी और जी बिल्कुल सर। उनके लिए मस्जिद बना दी गई है। तो समझिए एक नया गांव और नए पूरे के पूरे अहले हदीस वहाँ पे है। और ये वहाँ पे जो हमारे ख्याल से भी जो एक नए अहले हदीस हमारे भाई बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं, दोनों भाई से यहाँ मुलाकात भी हुई है, गुलाम गौस साहब। तो माशाल्लाह अभी वहाँ पे इमामत और खताबत का काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से वो फिनिश चले गए अभी कुछ दिनों पहले। मैंने उनसे कहा था राब्ते में रहिएगा, आपको भी इंशाल्लाह खताबत इमामत के लिए हम लोग कहीं कहीं भेजा करेंगे, जो मकसद है कि तुम लोग भेजते हैं। बहरहाल राब्ता नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन पता चला है कि वो वहीं पे भी बहसत खतीब वहाँ पे मौजूद है और नमाज भी पढ़ाते हैं। अल्लाह उन सबको जो बहुत खुशी का है बात ईमान पे है। कायम दायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? जी मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब, अब सुन रहे हैं हमें? चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस गांव के अंदर, मझौरा गांव के अंदर, ताजिया पहले कभी बनता रहा हो अलग बात है, लेकिन वो पूरा का पूरा इलाका ताजिया ही वालों का समझ लीजिए। और बहुत ही जोर और शोर से लोग, बड़े बड़े दक्काक, बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े अल्लामा कुतहर वहां पे मौजूद हैं। उस पूरे इलाके के अंदर बड़े बड़े मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस खुराफात को न बंद कर पा रहे हैं, है ना, और न इतनी हिम्मत है कि वो इसको बंद करे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, चाहे वो सुन्नी हो, बरेली हो, देवबंदी हो, जो भी हो, जिसके यहाँ बनता है ये सब चीजें। हमारे गाँव में जो अहले हदीस से नहीं बनाते, लेकिन कुछ हमारे यहाँ बरेली लोग हैं वो बनाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे वहाँ उसके जो उलमाए किराम है उनके पास भी जायज नहीं है, चाहिए कि वो लोग उसको बंद करें, है ना, क्योंकि ये खुराफात है जो इस्लाम के नाम पे हो रहा जी है ना, जिनको शियों ने इजाद किया था और अपने पूरे जिस्म को लहूलहान करके बताता है कि हम हुसैन के गम में, उनके याद में जो है हम लोग अपने पूरे सीना कुबी करते हैं और पूरे जिस्म को लहूलहान करते हैं, जो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, बिल्कुल ही जायज नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो सारे लोगों के लिए 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना जायज ही नहीं है, चाहे कि वो नवासे रसूल ही क्यों ना हो। नबी के लिए नहीं है तो फिर नवासे रसूल कौन होते हैं? किसी के लिए भी 3 दिन से ज्यादा नहीं है। अलबत्ता औरत के लिए जिनका अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन है, तो 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाएगी और उस बीच में वो कुछ भी नहीं करेगी, समझ गए? तो ये औरतों के लिए है, बाकी दूसरे लोगों के लिए है ही नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा कोई भी लोग वो शोक मनाए। और ये चीज बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, शिया लोगों ने इसको ईजाद किया हुआ है और यही लोग उस काम को कर रहे हैं। बहरहाल ये आशूरा के रोजे की फजीलत के बारे में आज का बयान था, है ना, और हम लोगों को चाहिए कि 9 तारीख और 10 तारीख को 2 दिन हम लोग रोजा रखें, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा लोगों को खुशियां मनाते हुए, है ना, तो कहा कि भाई तुम लोग क्यों रोजा रखे हुए हो, रोजे से तो वो लोग क्यों रोजा रखते हो? कहा कि आज ही के दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उनसे नाराज मिली थी,
कहा कि वो तो मेरा भाई है, मैं तो तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ कि मैं उसके लिए रोजा रखूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजा रखने लगे। लेकिन आपने कहा कि यहूदियों की मुखालफत इंशाल्लाह मैं करूंगा, है ना, और वो ये कि हम लोग 9 या 10 को रोजा रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, एक दिन नहीं, इसलिए कि यहूदी एक दिन रखते हैं। तो बहरहाल वो 9 तारीख को भी और 10 तारीख को 2 दिन हम लोग जो है रोजा रखें, ठीक है। और इंशाअल्लाह इंशाल्लाह 1 साल का गुनाह जो है हमारा माफ हो जाता है। एक दिन 2 दिन 2 दिन हम लोग रोजा रखते हैं और 1 साल के गुनाह हमारे माफ हो जाते हैं। अलबत्ता जिलहिज्जा के महीने में अरफात के दिन जो रोजा रखते हैं हम लोग, उस दिन अगर हम लोग एक दिन का रोजा रखते हैं तो 2 साल का गुनाह, 1 साल आगे 1 साल पीछे का गुनाह सगीरा जो होता है वो माफ हो जाता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे जितना नवाज दे, और वो कैसे नवाजता है, जरा एक मिसाल अल्लाह ने दिया कुरान के अंदर, बताया कि देखो मैं तुम लोग एक दाने गेहूं के या धान के या किसी भी चीज के या आम का एक गिठली तुम लगाते हो, एक पेड़ निकलता है और उसी पेड़ से कितने आम फलते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं। एक धान आप लगाते हैं, एक धान से कितनी बालियां निकलती हैं और उस हर बालियों के अंदर कितने शीश निकलते हैं और हर शीश के अंदर कितने होते हैं। ये सारे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको चाहे जितना दे नवाजे। और अल्लाह ने मिसाल दिया है कि अगर तुम एक गुनाह करते हो, जब गुनाह करते हो तो एक गुनाह किया तो तुमको एक ही गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर तुमने कोई नेकी की, किसी को पानी पिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, या कोई भी नेक काम कर दिया, हत्ता कि अगर तूने रास्ते में गिरा हुआ एक पत्थर भी अगर तूने हटा दिया, पत्थर भी अगर रास्ते से तूने हटा दिया, तो एक नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं 10 गुना दूंगा, और 10 गुना ही नहीं बल्कि 700 गुना तक बढ़ा देता है। मिसाल अल्लाह ने दिया है, और वही मिसाल है। मिसाल क्या दिया कि एक धान तुम लगाते हो, एक गेहूं का पौधा, एक दाना लगाते हो, और उस दाने से कितनी बालियां निकलती हैं, हर बालियों से कितने न जाने वो निकलते हैं, शीश निकलता है, उसी में से कितने न जाने वो दाने निकलते हैं। तो आप एक दाना लगाए और सैकड़ों दाने, हजारों दाने आपको मिलते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है जो हम लोगों को देता है। और इस तरह से रोजे हैं, जो कभी हमको कहता है मुहर्रम में रखो, है ना, रमजान का रोजा दिया कि 12 महीने इंसान 11 महीने तो गुनाह करता है, ठीक है, गुनाह कर लिए, चलो ठीक ठाक, गुनाह जो कुछ भी किए, 1 महीना अल्लाह दिया हुआ है, उसमें अगर 1 महीना रोजा रख लिया, हाँ, मन साम रमजान ईमानो व तिसाबन गुफर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उसका गुनाह जो है सारे का सारा अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। उसमें एक रात एक ऐसा दिया है कि 1000 महीने, 1000 महीना 83 साल तकरीबन होता है, समझ रहे। अगर आप एक रात उसको पा लिए, शब कदर की रात अगर आपने पा लिया, तो इतने दिन का सवाब आपको मिल गया, समझ रहे। ये अल्लाह की तरफ से बख्शिश है, उसकी रहमत है, उनकी बरकत है। एक जिंदगी, पूरी जिंदगी लोग उतना नहीं जीता है, 83 साल कौन जीता है। 50 साल के बाद तो सब ढल जाते हैं, किसी के कमर में दर्द, किसी में पाँव में दर्द, 60 साल हुआ तो झुक जाते हैं, और 70 साल होते होते दुनिया से चले जाते हैं। 80 साल तो बहुत कम लोग देखते हैं, और 100 साल। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ने ये सब चीजें अपनी तरफ से दिया हुआ है। हमें सोचने की, समझने की, गौर करने की, फिक्र करने की जरूरत है, हम अपने माशरे से बुराइयों को कैसे मिटाएं। आप जैसे नौजवान लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, तभी तो हम लोग हिम्मत करेंगे, हम अकेले कहाँ तक चल पाएंगे। आप लोग हम लोगों के साथ आइए, ये मकसद हयात के तहत ये जूम चल रहा है, समझ रहे हैं। और इसी जूम के तहत आप देख लें, हम लोग अभी आज भी जो है मैं चौथा में जो है हमारा खतीब गया तकरीर करने के लिए, हम लोग भेजते हैं, और तकरीर नहीं करता वो, असर तकरीर करके दावत और तबलीग का भी काम करता है। किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी औरत को, है ना, तबलीग करता है, उनके खास मखसूस मसाइल बयान करता है। हम लोग गाँव जाकर के जहेज अभियान भी चलाते हैं, और बहुत सारे जगहों पे झगड़ा हुआ तो हम लोगों ने उसको निपटाया यहीं से बैठे बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को नेपाल में भेज करके हम लोगों ने ये सारे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, समझ रहे हैं। तो उस काम को करने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है, जो लोग कतर में है, जो दुबई में है, जो खलीज में है, जो नेपाल में है, वो सब मिल करके हम लोग करेंगे तो होगा, अकेले कोई बंदा नहीं कर सकता है। इसीलिए आप लोग मकसद हयात के साथ जुड़े और हम सब मिलजुल करके इस काम को करें। कुछ बोलना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जहाँ भी हो मकसद हयात के साथ जुड़े, हम लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द, खासकर जो है अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें जी, बच्चों को जो है ज्यादा तरबियत देने की जरूरत है, और बच्चों को तरबियत देंगे उसके बाद ही जो है हमारा मुआशरा बुराइयों से जो है मतलब खत्म होगा। और एजुकेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहले बच्चों की तरबियत हम लोगों को देना होगा। बच्चों की तरबियत हम लोग देंगे तो उसी से हम लोग कामयाबी अता करेंगे। हम लोगों को क्या, हम लोग तो अपनी जिंदगी अभी जी रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी कितनी कट गई, आधी जिंदगी कट गई, अब हमारा बच्चा हुआ। बच्चों को तरबियत देना बहुत जरूरी है। उनके लिए, बच्चों के लिए हम लोगों को सोचना है कि आगे हमारा बच्चा, उसको क्या, किस तरह से
जो है उसको एजुकेशन में जो है मतलब आगे बढ़ाएं, किस लाइन में हम आगे बढ़ाएं जिससे हमारा मुआशरा कामयाब हो, हमारा बच्चा कामयाब हो, बच्चा कामयाब होगा तो हमारा मुआशरा कामयाब होगा, मुआशरा कामयाब होगा तो लाजिम पूरा जो है मतलब इलाका कामयाब होगा। तो उसमें हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों के ऊपर जो है मतलब ध्यान दें और तरबियत अच्छे से अच्छे तरबियत की तरफ जो है मतलब उभारें बच्चों को। और छोटे छोटे मदरसे हैं गांव में, उस मदरसों के ऊपर ध्यान दें, स्कूल के ऊपर ध्यान दें कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों को किस तरह से जो है मतलब तरबियत दी जा रही है। उसमें ऐसा नहीं है कहीं पर मौलाना को रख दिए और जो है मतलब बच्चों को यूं ही जो है मतलब छोड़ छाड़ के जो है मतलब कुछ किसी किस्म की पढ़ाई नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, उस पर भी ध्यान देना है। तो बच्चों का एजुकेशन और बच्चों की जो है मतलब तरबियत वहीं से शुरू होती है, समझ रहे हैं। तो हर गांव का मसला ये है, किसी भी गांव में बच्चों की तरबियत अच्छी है, उनकी पढ़ाई अच्छी है, इंशाल्लाह वो बच्चा सही होगा, आगे चल करके नाम रोशन करेगा और वो ही बड़े बड़े आलिम बनेंगे, उसके बाद हमारा मुआशरा जो है कामयाब होगा। बड़ी अच्छी बात है। फहीम साहब, आपका नाम फहीम होना चाहिए, फहीम नाम शायद मेरे ख्याल से स्पेलिंग में शायद गड़बड़ी हो गई, उसको दुरुस्त कर लें आप। जी फहीम साहब, आप तो ठिला के हैं ना? कलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम ही वही है, मेरा नाम कोई गलत नहीं है, मेरा नाम ही वही है, मेरा वो हर कुछ वही नाम से है, यच नहीं लिखा हुआ है, अच्छा, ऐसा ही लिखा हुआ है। चलो कोई बात चलिए कोई बात नहीं है, अगर वही लिखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा, है नहीं। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, लोगों को बुढ़ापे में जाकर के भी नाम बदल देते थे। कोई बात नहीं है। नहीं सर, मेरा बचपन से यही नाम है, पूरा एंट्री स्कूल में भी यही नाम से, इसके लिए यच नहीं डाला, स्कूल में एंट्री है ये, इसके लिए हम सरकारी में यही है, तो इसके लिए दूसरा कुछ चेंज नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ के हैं? ठिला के? आपको तो पूरा मालूम है हम कहाँ के हैं, फिर भी सवाल कर रहे हैं, बोलिए ठिला के हैं। हमको अगर हमको मालूम है तो सबको तो नहीं मालूम है ना। आपको सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस्लामी माशरे को लेकर के, है ना? इसलिए कि तारुफ सबका हो जाता ना तो अच्छा रहता। मैंने सबके गांव का नाम ले लिया, आपका भी ले लिया हूँ, लेकिन अगर आप अपने तरफ से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामी माशरा को लेकर के देखें, हमारे यहाँ बहुत हंगामा चल रहा है अभी, दहेज के मसले को लेकर के अभी लोग पूरे जो है हंगामे में है नहीं। बहुत सारे लोग जो है उसमें कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस हंगामा आराई के बाद जो है बहुत अच्छा काम होने वाला है और बहुत अच्छा काम होगा इंशाल्लाह, है ना। और दूसरे लोगों को फिर सोच समझ करके, जो दहेज ले रहे हैं, चोरी से ले रहे हैं, चुपके से ले रहे हैं, मालूमात तो हो ही जाती है। जो बाप जो है, जो बड़े दर्द और 15 लाख रुपया लेकर के, 20 लाख रुपया लेकर के, कर्ज लेकर के वो बंदा जब आपके घर में जो दहेज देगा तो जाहिर सी बात है उसके मुंह तो नहीं रुकेंगे, वो तो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा कि भाई हमने इतने कर्ज लिए हैं, अपनी बेटी की शादी में ये हुआ, वो खर्च हुआ, कहाँ से क्यों खर्च हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो। हमारा जो माशरा जो दलदल में फंसता चला जा रहा है वो यही है, हराम का आप लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो पैसा यूं का यूं खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं? जी। और तो ये इधर भी पैसा यूं का यूं खत्म हो गया। जो बंदा मेहनत से कमा के लाया या कर्ज लाया या जमीन बेचा और उसके बाद अपनी बेटी की ब्याह की या 4 बच्चे उनके पास हो गया, बेचारा सोच फिकर से ही मर गया, है ना। तो ये तो हमारे माशरे के लिए सबसे बड़ी जिल्लत की बात है ना। इस चीज को कौन दूर करेगा, कैसे दूर किया जाएगा? आप नौजवान लोग अगर उठेंगे, अगर आप लोग वादा कर लें कि हम अपने बाल बच्चों में नहीं लेंगे, है ना, हम अपने बाल बच्चों को लेंगे ना देंगे, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा काम होगा इसके ऊपर। लेकिन ये कौन करेगा? हम और आप उठेंगे तभी तो होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिली जमीयत के अंदर जो हंगामा बरपा है नहीं, मैं समझता हूँ इससे भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि आज जो हंगामा बरपा हुआ है, अब दोबारा जब कोई अपने बच्चे की, बेटी की या बेटे की शादी करेगा तो बड़े सोच समझ के करेगा, और करना भी चाहिए लोगों को, है नहीं। ये नहीं कि हम आए और शादी कर लिए और ये है कि जो लेना हुआ जो सोच दे दिए ले दिए, ऐसा नहीं है। बल्कि अब जो भी लेगा तो सोच समझ के लेगा, वरना देख रहे हैं जो हंगामा आराई हो रही है तो आप उसके लिए तैयार रहें, समझ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है, फहीम भाई हमारे बड़े मुतहरिक किस्म के आदमी हैं, है नहीं। मैं समझता हूँ कि उनका जो कमेटियाँ चल रही हैं, बहुत सारी कमेटियाँ हैं इन लोगों की, और माशाल्लाह बहुत मुतहरिक हैं और बहुत ही इनको लोग मानते हुए हैं। तो फहीम साहब, हम चाहेंगे कि दहेज के ऊपर आप थोड़ा सा बोल रहे हैं कि दहेज को कैसे खत्म किया जाए। देखिए ठीक है, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। दहेज के मामले में तो अभी तक हम तो जिला जमायत में नहीं है, चाहे मकसद किसी में भी हम नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हम एक बात बोलना चाहेंगे
कि अगर हर कोई जो दहेज के मामला में जो खत्म करना चाहते हैं तो एक बैग ये एक लॉट है, जो एक लॉट एक बैग नहीं खत्म होंगे, आराम से पूरा विस्तार से खत्म होंगे। लेकिन जो जितने मौलवी हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी जो अपने बच्ची को जो दीन इस्लाम में जो किया गया हुआ है, जो लड़की को जो अपना हक जो दे दे, जैसे कि मानिए हमारे घर में चार बहन हैं, हम 2 भाई हैं, तो हमारे घर में जो जितने हैं, हम 2 भाई को जितना हक है, जितना इस्लाम का, हमको तो उतना इस्लाम मालूम नहीं है, वो हिसाब से जितना इस्लाम में जो हक है लड़की का, हमारे मिसाल से ये है कि जो लड़की का हक हर बंदे जो अपनी लड़की का हक दे दे, तो इंशाल्लाह ये दहेज का मसला ही खत्म हो जाएंगे। जितने बंदे हैं जो अपने जितने नेपाल में हैं, हाँ ये भी मसला है कि अगर हर कोई ये ऐसा ही कर दे, जो अपने बच्चिया का जो उसका हक अदा कर दे, तो कोई दहेज लेने का कोई मसला ही नहीं आएगा। और खास करके रह गए जो बड़े बड़े आलिम उलमा है, जो और कोई बड़े बड़े लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग कोई जो दहेज लेते हैं उनको दबा देते हैं, भाई तुम दहेज क्यों लिया। जो बड़े बड़े आदमी लोग है, आलिम उलमा है, चाहे जो बड़े आदमी हैं, वो आदमी लोग खुद को दहेज ना ले, खुद को, भाई हमको कोई आदमी मान के चलिए हम शादी किए, हमको हमारे ससुर ने एक गाड़ी दिया, हमारे बीवी के लिए एक गाड़ी दिया, हम अगर ये बोल दे ससुर को कि भाई ये गाड़ी ना दे, हम कमा रहे हैं, अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं, अगर हम खुद गाड़ी खरीद सकते हैं तो आपको क्या मसला है वो गाड़ी देने के लिए, आप 3 लाख क्यों खर्चा करेंगे, आप बचत करेंगे तो आपको अग्रिम काम देंगे। ये चीज अगर हम खुद का अंतर महसूस करके अगर खुद कर ले, अगर ये हर कोई कर ले, तो ये दहेज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हमारे राय में ये हिसाब से है, समझ गए कासिम साहब। बहुत अच्छी बात आपने बहुत बेहतरीन कह दिया कि अगर किसी को मोटरसाइकिल मिले और वो भी ना ले, आजकल कौन नहीं कमा रहा है भाई, कमाइए उसके बाद शादी कीजिए, समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, है ना, और लोगों को नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो लोग जब आप एक चीज बहुत दर्द होता है उसको खतरा जब पता चलता है, आदमी जब देखता है कि नहीं हम ये पलंगड़ी नहीं लेंगे, या अगर 50,000 वाला पलंगड़ी है तो हम नहीं लेंगे, हमको 5 लाख वाला 4 लाख वाला चाहिए, तो तकलीफ होती है। इन्वर्टर आपको अच्छा वाला देना चाहिए, अगर इन्वर्टर खराब हो गया जल्दी तो हम नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं, तो तकलीफ होती है। फ्रिज आपको चाहिए तो नहीं ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला फ्रिज चाहिए। जब मांग करके आप ले रहे हैं, सारी चीजें मांग करके लिया जाता है, वैसे नहीं है, अच्छा वाला दीजिए, मेड इन जापान दीजिए। और दूसरी चीज आपने कहा है कि लोग अपने हक के विरासत अगर दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हक के विरासत जो होता है ना, देखिए जहेज जो है वो शादी जो है आप फौरन कर रहे हैं, लेकिन जो विरासत का मसला है वो बाप के साथ है कि बाप का जब इंतकाल होगा तभी आप विरासत बांट सकते हैं, उससे पहले विरासत आप नहीं बांट सकते। ये कुरान का हुक्म है कि जब बाप मर गया और वो बाप जिसके पास दौलत है उनको ये भी इजाजत नहीं है इस्लाम की तरफ से तो वो एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा दे दे, है ना, 200 रुपया, दूसरे बच्चों को 100 रुपया दे, ऐसा भी जायज नहीं है उनके लिए, वो गुनहगार होंगे और क़यामत के दिन उसको सजा मिलेगी उसकी। बाप को भी ये हक नहीं है। बाप का क्या हक है कि जो भी भाई वसीयत कर दे कि जितने भी भाई सामान है घर के अंदर, जो भी जायदाद है हमारे, उस सारे सामान को एक जगह करो और जितने भी तुम्हारे बहनें हैं और जो तुम्हारे भाई हैं सब जाकर के तुम उसको बांट लेना। मरने के बाद उसकी बटाई होगी, मरने से पहले अगर आप बांट लेंगे और सबको दे देंगे तो बाप जब बीमार पड़ता तो कौन आएगा देखने के लिए, आएगा कोई देखने के लिए? उस बाप के माल के अंदर किसी का हक नहीं है। बाप जब मर जाएगा तब आपका हक बनता है, उससे पहले जो है बेटे का भी हक नहीं है कि बाप के माल से पूछ ले, और वो बाप जब मर जाएगा तब आपका हक है। लेकिन जब तक वो जिंदा है, बीमार पड़ा, खाने पीने की जरूरत पड़ी, किसी और चीज की जरूरत पड़ी उनको, तो वो अपना दिल खोल के खा सकता है, कमा सकता है, रख सकता है उसको, यहाँ पर समझ रहे हैं। वरना बाप हमेशा जिंदगी भर मुसीबत में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। इसीलिए अल्लाह ने ये कहा है कि मरने के बाद विरासत देना। लेकिन जहेज तो आप पहले ले रहे हैं ना, ये तो सरासर हराम है, खुला हराम है। आप यहाँ पर यूं समझ लें, यहाँ पर यूं समझ लें कि जहेज हम लोग शादी के मौका पर खुद लेते हैं या हमारे गार्जियन लेते हैं, लेकिन बाप जब अपने बच्चियों की शादी करते हैं ना, उस वक्त जो है जिन बाप के पास पैसा नहीं होता है और वहां पर विरासत जाएंगे मांगने के लिए, तो मुनासिब नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे किसी बाप के पास कुछ मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है, अगर बच्चियों की शादी किया, कुछ शादी के बाद पैसा बच जाता है और खुदा न खास वो बीमार हो गए और बीमारी में पूरा जो है मतलब पैसा खत्म हो गया या जमीन जायदाद सब खत्म हो गया, तो उसके ऊपर जो है विरासत का हक कहाँ है? कैसे देगा वो विरासत? वहां से नहीं दे सकते। इसलिए कलाम साहब, आप जी आपके बात पे हम सहमत है, लेकिन बात ये भी है ना, साहिब सरवत जो है ना, साहिब
हम दहेज नहीं लेना चाहते, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो शरीयत के ये करके वाजिब कर देता है, हमने अपने लड़की को 3 लाख का गाड़ी दिया, अच्छा हमने अपने लड़की को इतना दिए, खुशी से दिए, भाई आपने क्यों खुशी से दिए? यही तो मसला फंसाते हैं ना उतना यहाँ पे। वही जो गरीब आदमी है, देखिए मैं ये मौजा करना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी है वो तो कभी नहीं कहते कि हम अपने लड़की को खुशी से दिए हैं, जिनको पैसे वाले वो तो दे दिया, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं दहेज के हिसाब से दे दिया, वो तो अपना हिसाब से समझते हैं कि हम अपने लड़की को, हमारे पास में दौलत है तो हमने दे दिए हैं, सही है ना? वो लेकिन दिखावा हमारे नहीं माशरे करना में चाहिए। हाँ सही बात दिखावा है नहीं आपका, करते हैं, लेकिन वो तो दिखा देते हैं ना कि हमने दे दिए, खुशी से दे दिए, लेकिन हमारे नजर में तो वो तो दहेज ही आया ना। अगर मान के चलिए अगर कोई आदमी बंदे अगर आ गया, अगर कोई बंदे आ गया, मान के ले लीजिए आपने हमको खुशी से दे दिए कि चलिए फहीम साहब हम आपको एक मोटरसाइकिल खुशी से दे दिए, अगर मान के चलिए हम ये पान दुकान पे गए, कहीं पे गए, आपके गांव में चाहे बाहर में गए, हम वहां पे पान खा रहे हैं, कोई आदमी बोल दिया भाई ये बैग कहाँ से आपको मिला, तो भाई ससुराल से दिया, कैसे दिया, तो खुशी से दिया, कोई मानेगा कि खुशी से दिया? नहीं, दहेज हो तुमने गया, लिया, ये तो हमारे दहेज हो गया वो ना। दहेज हो गया, सही मॉडर्न नहीं है, फकीर बोलता है ना, भी वो हो लेना गया। सही नहीं है। आप शादी के मौका पर अगर खुशी से आपको ससुराल से मिल रहा है कुछ, तो आप उसको इनकार कीजिए ना, दे दीजिए ना वापस, भाई मुझे नहीं चाहिए। हाँ तो यही मसला कर रहे हैं ना, जब हम खुद अपने पैर पे खड़ा है, हमारा घर पूरा मकान का बने हुए हैं, हमारा पूरा हर कुछ है, हमको हर कुछ भरपूर है, तो हम काहे बाहर से लेंगे, हम काहे इंशाल्लाह खुशी से ये दे, धीरे चाहे धीरे हो खुद जाएगा, खरीद कर सकते ना। ये यही धीरे चीज तो धीरे दहेज हो का मसला है ना। यानी आपके घर में सिर्फ इतनी ही कमी थी कि आपके घर में पलंग नहीं था, आपके घर में मोटरसाइकिल नहीं थी, आपके घर में ये नहीं था, हाँ यही बात है, दहेज का मसला में ना आ रहे हैं। अगर हम लोग बड़े आदमी ऐसे सोच ले तो छोटे आदमी को क्या सोचेंगे? हम लोग छोटे आदमी को जाके बोलेंगे दहेज भाई मत लिया करो। हमारे मुस्तफा बड़े भाई आदमी सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें, और अभी हम लोग दहेज के मुताबिक बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ कहना चाहें तो मेहरबानी होगी, सामने आए। क्योंकि मुआशरे का सबसे बड़ा ये दहेज ही है अभी। बहुत ही जी बिल्कुल, मसला है ये, बहुत ही सबसे पहले जो बड़ा बड़ा आलिम और सब इसको है कैसे ना, खत्म किया जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ यही है कि आप लड़की के लिए भी कपड़ा लेके जाएं और जाकर के निकाह करें, 5 आदमी जाएं निकाह करें और सिर्फ कपड़ा पहना करके उसको अपना कपड़ा पहना करके लेके आ जाए। उनके माँ बाप को तोहफा में देना होगा कपड़ा तो दे, लेकिन उसको बोलिए कि हम आपके कपड़े में नहीं जाएंगे, हम दे रहे हैं कपड़ा, लड़की को वो पहनाइए, हम उस कपड़े में लेके जाएंगे। समझ रहे हैं काम? बिल्कुल सही। ये रवाज, ये ऐसा माशरा हमारा कब बनेगा, उसके तरफ हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, हम लोगों को जागने की जरूरत है, उठने की जरूरत है। और जो लोग दहेज के नाम पे हो चोरी छुपे ले रहे हो, अंदर से ले रहे हो, तड़े ले रहे हो, हर आदमी को हमें जवाब देना है और ऐसे लोगों को बाइकाट करना है, समझ रहे हैं? तब जाकर के हमारा माशरा इस लेवल पे आएगा। कासिम साहब 5 आदमी जाए और लड़की को शादी करके लेके आ जाए, बस यही सही। ये मसला हम लोग को जब हम लोग का ये कभी खत्म आएगा जब हम लोग खुद अपने आप में जो विश्वास करेंगे और जो हमारा बाप जो ले रहा है उसका खिलाफ हम खुद खड़ा होंगे ना, तभी ये मसला हमारा सही आएगा। हमको कोई 50,000 घूस दे दिया, हम खा लिए और हम उसको सफाई दे दिए कि भाई ये अच्छा आदमी है, ये ने ऐसा किया, जो बोल सकता है उसने बोल दिया, हम घूस खा के बोल दिए हैं कि भाई इसने अच्छा किया, लेकिन जो बच्चे जो गरीब है उनको बोलने का कोई हक नहीं, 10 आदमी का बीच में उसको हम लोग दबा दिए हैं, तो ये मसला तो कभी खत्म नहीं आएंगे ना। हम पावर में, हम पैसे वाले, तो हमने बोल के 10-5 खिया के हमने बोल दिया कि दहेज बंद हो जाना चाहिए, हमने खुद ले लिए, अमीर आदमी तो ले लिए, क्योंकि हमारे सामने में किसी गरीब का औकात नहीं है बोलने का, ठीक है, तो उसने ले लिया, हमने उसको बोल दिया। लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा हो जो नहीं बोल सकते 10 का बीच में, अगर वो आदमी अगर ले लिया तो उसको सामने हम लोग बोल रहे हैं भाई तुमको ये खत्म करना चाहिए, कैसे खत्म आएगा अभी बताइए? एक यहाँ पर एक बात और है, समझने की एक बात और है कि हमारे साहिब सरवत जो दौलतमंद आदमी सब हैं, जिसके मरने के बाद भी जो है मतलब दौलत बच जाता है, और वो लोग अपने बच्चों की विरासत में शामिल नहीं करते हैं, बेटियों को विरासत नहीं देते, वहां से मसला शुरू हो जाता है। अगर जितने भी 25% या 50% जो साहिब सरवत हैं, अगर वो विरासत देना शुरू कर दें और विरासत में अपने बच्चियों को हिस्सा दे दें, तो इंशाल्लाह ये सब खत्म होगा, आराम से हकीकत में खत्म होगा। और ये बात जान लीजिए, कब्र में कोई बख्शे नहीं जाएंगे जी। जो लोग भी विरासत का माल खा रहे हैं, हर आदमी सुन ले कि जो भी विरासत का माल खा रहे हैं उन सबको जवाब देना है, कब्र में आजाब में मुब्तला होना है, जहन्नम के अंदर जाना है, बात जान लीजिए आप लोग।
यही समझ जाएगा ना, जितना भी इंशाल्लाह। परेशानी और जो आप लोग मुसीबत है ना नहीं सब देंगे, दूर हो हम जाएगा। हम रहे या कोई भी रहे, यही जानबूझ चीज करके जो अगर खा रहे हो तो जाएंगे, जानबूझ के सोच रहे हैं कि हम जहन्नम में जाएंगे, कौन देखता है भाई? आजकल तो लोगों ने कहा यार कौन देखेगा, जहन्नम में जाएंगे तो जलेंगे तो कौन देखेगा? अरे एक उंगली को थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए अपने आग में जला, इस दुनिया की आग में रख करके देखो ना, 2 सेकंड ऐसे कैसे कितना मजा आता है। वो 70 गुना जी जो सर आग है, उस यही आग में जलने के लिए तुम एकदम तैयार रहते हो, तो कौन देखेगा और कौन क्या करेगा? मेरे भाई मैं आपको बताऊं, यही भूल क़यामत का दिन जो यही होगा वो भूल जाता ना अभी 50,000 के साल जो का होगा, 50,000 साल का होगा एक दिन, और 10,000 साल तक कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आप कितना जिएंगे बताइए, कितना जीते हैं? 50-60 साल के अंदर यही तो आपकी भूल तो पता नहीं क्या क्या निकल जाती है, हैं? हम परेशान हो जाते हैं, और वो 10,000 साल तक हिसाबो किताब नहीं, बदन पे एक कपड़ा नहीं, सूरज 1 मील होगा, हैं? पसीने में ऐसे डूबे होंगे, माई ऐसा कहती है अल्लाह के नबी, पसीना खूब बहता होगा। हाँ, पसीने में ऐसे डूबे होंगे जैसे कढ़ाई में तेल, ऐसा खोलते हुए पसीने के अंदर हम लोग रहेंगे। सोचेंगे पसीना को झटक दे, हदीस के अंदर आता है कि वो पसीना भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और उसी खोलते हुए पसीने के अंदर आप लोग 10,000 साल यूं बिताएंगे। आदमी इतना परेशान हो जाएगा, कहेगा या अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे, लेकिन हमें इस परेशानी से दूर फरमा दे, हमारा हिसाब किताब कर दे। समझ रहे हैं? फिर भी 40,000 साल तक हिसाब किताब होता रहेगा। दिन के लिए सोचिए, कब्र के अंदर जब आदमी जब जाता है तो ऐसे पिछलियां उसको जब तोड़ दी जाती है, कब्र ऐसे ऐसे जो गुनाहगार होता है, मेरे भाई उसके लिए तैयारी करें। जो लोग विरासत का माल खाता है ना, वो बख्शे नहीं जाएंगे। वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो विरासत का माल खाते हैं। वतअकुलून तुरास, विरासत का माल खाते हो, ये अल्लाह ने कुरान में कहा। लोग आपको समझाए ना समझाए, कुरान में अल्लाह ने सारी चीजें बयान कर दी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों ने और अभी लोगों ने जो आवाजें उठाई है, और जहेज मुखालिफ हो या माशरे के अंदर से इस्लाह का मामला हो या कोई भी चीज हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हम लोग इस साथ को इस पे काम करते रहेंगे। आप लोगों के साथ की जरूरत है। हम लोग साथ हैं इंशाल्लाह शेख साहब। इंशाल्लाह हम लोग के साथ ही हम लोग भी सोच रहा मोहतारी जिला में एक मझौरा इस्लामिक वेलफेयर के काम कर रहा है इंशाल्लाह। दहेज के ताल्लुक से भी ये बहुत जरूरी, उस पर भी काम कर रहा है हम लोग, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेगा। चलिए अच्छी बात है। अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान दास, अपना अनम्यूट कीजिए। ये हमारे आप लोगों को बताता चलो, माशाल्लाह अल्लाह ने, ये कुफ्र में थे पहले, अल्लाह ने इसको ईमान की दौलत से नवाजा है, और ये अभी सऊदी में शायद रहते हैं किसी रेस्टोरेंट में। माशाल्लाह ये बहुत है सब कुछ। माँ बाप को जब छोड़ के जब आदमी मुसलमान बनता है तो कितनी परेशानी होती है, कितने दुख होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, वो सब आप लोग समझ सकते हैं। भाई ने बहुत झेला है और अब तक झेल रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जमीन खरीदने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, कितने मुश्किल से क्या क्या सब परेशानियां इनको हुई है। हमारे अभी ये जनकपुर में रह रहे हैं, इनके बाल बच्चे वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। इंशाल्लाह और सब अल्लाह ने इसको परेशानी ईमान दूर की हो दौलत जाएगा से नवाजा इंशाल्लाह। है ना। कुफर से अल्लाह ने इसको जो है नजात दी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए से दूसरे लोगों को भी जो है और मजीद लोगों को भी जो इस्लाम में दाखिल फरमाए, ईमान की दौलत से नवाजे। तो अब्दुर्रहमान साहब कुछ कहना चाहेंगे या कस्टमर है आपके सामने? कासिम साहब, होटल में सबसे हम पहले अगर दहेज के आपका भाई खत्म और करने के लिए कहना चाहे तो कहें, इसके बाद हम जो है हमारा टाइम खत्म हो गया है। भी दिखाई दे रहा है। जी शफीकुल्लाह साहब बोलेंगे। शफीउल्लाह साहब कैसे हैं? शफीउल्लाह साहब अनम्यूट कीजिए अपना और बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम चाहते हैं अस्सलाम। कि पीला वाला नमूना बने कि ना बने? क्या कहें शेख, आवाज़ नहीं है हमारा, क्या आ कहें, रहा कुछ तो कहें। क्या कहें, कुछ कहने पीला के असल लायक में नहीं है। मरकज है, मरकज। मरकज का मतलब है सेंटर। जी हमारे धनुषा धनुषा का एक ऐसा सेंटर है। मैं एक मरतबा तकरीर करने का मुझे मौका मिला जब अब्दुल कयूम मौलाना साहब जिंदा थे और हबीब साहब वगैरह सब थे, जब मैं अखबार लेकर के गया था, एक ही मरतबा वहाँ पे चलिए तकरीर अल्लाह करने का मौका आपको मिला, तो वहीं पे मैंने ये बात कही थी। जिस वक्त जो है मस्जिद में जो टाइल वगैरह नहीं लगी थी, बिल्कुल कैसा न कैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये गाँव एक ऐसा सेंटर है ना, जहाँ पे तो अगर संगमरमर चाहे तो हम लोग बिछा सकते हैं, जो मस्जिद की हाल है ना। तो बहरहाल ये सेंटर है आप लोगों का, और आप लोगों का जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह छाप रहता है और छाप पड़ता है दूसरे गांव पे। तो शफीउल्लाह साहब जहेज के ताल्लुक से कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे तो हम लोगों की बात आज थी आशूरा के ताल्लुक से, इंशाल्लाह हम सब रोजा रखने की कोशिश करेंगे 9 तारीख और 10 तारीख को।
है ना। आज 4 तारीख हो गई है और इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद आज से 5वें दिन। क्या क्या कहें, बोलना चाहेंगे शफीकुल्लाह साहब? कुछ कहने का नहीं। आप तो जानते ही है ठेला के बारे में, क्या बोले हम। चलिए अच्छी बात है, दिल से साथ रहें, समझ रहे हैं, दिल से साथ रहेंगे और हम लोग मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा अच्छा काम होगा। इंशाल्लाह आपके साथ है इंशाल्लाह। जी जी, अल्लाह हर आपको आदमी खैर अता फरमाए, आपके जिस मजाक में खैर बरकत अता फरमाए। जी अब्दुल वाहिद साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने दुआया कलिमात के साथ जो है इस मजलिस का एहतमाम करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं तो उन्हें ख़त्म कर दे। अल्लाह आमीन, जो हम में से चाहे वो शादी का मामला हो या इसी तरीके से जो है आपसी ताल्लुकात का मामला हो, रिश्तेदारी का मामला हो, जो लोग इन तमाम चीज़ों से दूर भाग रहे हैं तो उन्हें रिश्तेदारी समझने की और इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तो हम तमाम मुसलमानों के दिलों को मोहब्बत से जोड़ दे। अल्लाह आमीन, तो हमें दीन काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तो हमें दीन और उसके सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तो हमें दुनिया की बुराई से बचा ले। अल्लाह आमीन, तो तुम हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तो हमें रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात जैसे खैर काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, हमें दीन जैसी नेमत तूने अता की है तो हमारा खात्मा भी इस्लाम पे फरमा। अल्लाह आमीन, हम जहाँ कहीं भी रहें अमन व अमान में रहें, हमारी पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान भाई हैं सब के सब हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह आमीन, इन मुसलमानों को जो है दीन समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन, तूने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना आमीन। इसके साथ ही जो है हम इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अल्लाह इसी तरह से हम सबको एक जगह एक साथ मिलजुल करके इस्लाह माशरा में काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।